गुड इवनिंग। इंग्लिश मीडियम के लिए कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पार्ट 3। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ अर्थ, assuming that it is behave like as conductor spherical charge spherical conductor. Now continue question लेंगे. Find the radius of spherical conductor. Find the radius of spherical conductor of capacity 1 farad. Of capacity 1 farad. अगर किसी कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैरेड के इक्वल है तो देन उसकी रेडियस क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना। और इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है और करके प्रूव दैट 1 फैरेड इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटी। ये कैपेसिटी की बहुत बिग यूनिट है, ये भी आपको प्रूव करना हो सकता है। और can we put a conductor of capacity 1 farad in an almirah? आप क्या एक कैपेसिटर है, कैपेसिटी 1 फैराड का या कंडक्टर है, उसको आप एल्मिरा में पुट कर सकते हो क्या? देखो, अर्थ इज ए वेरी लार्ज साइज ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर, बट देयर इज a very common problem with earth, that is its capacity is very small in microfarad. So we can assume that very large size earth has very small capacity of microfarad. So we can assume that, we can conclude that for 1 farad there is a very big size conductor, spherical conductor required. So here we find the size of the spherical conductor. Given that, आपको जो given है, given that C equals to 1 farad. Now we find its radius with the help of formula. Formula is C is equal to R upon K. So here we write R equal to what? CK. C is here 1 and K is electrostatic constant for vacuum. So the value is 9 into 10 की power 9. So the resultant of radius is R equals to 9 into 10 की power 9. And the unit of radius is meter. So it's very large radius. R equals to 9 into 10 raised to power 9. It can be written as 9 into 10 की power 1, 10 की power 5, 10 की power 3 and then meter. 9 can be break 1, 5, 3. Again we add, then it is 9. This is 90. This is lakh. This is lakh. And this is kilometer. If the radius of spherical conductor is 90 lakh kilometer, then its capacity is 1 farad. So we can conclude that. So we can say that 1 farad is a very big unit, very big or biggest unit of capacity. आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी biggest unit है, लार्जेस्ट यूनिट है। 90 लाख किलोमीटर अगर रेडियस होगी, देन उसकी कैपेसिटी 1 फैराड होगी। मतलब 1 फैराड बहुत बड़ा अमाउंट है कैपेसिटी का, इट्स वेरी लार्ज अमाउंट। सो वी कैनॉट पुट इट इन एन अलमीरा। इसको आप अलमीरा के अंदर पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बहुत लार्ज साइज की अलमीरा रिक्वायर्ड होगी, इस नॉर्मल एल्मिरा में रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो 1 फैराड इज ए वेरी लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी। ये अपना प्रूव हो गया। ओके, जनरली हमने जो क्वेश्चन लिया था वो हमारा प्रूव हो गया कि फैराड जो है वेरी बिग यूनिट है। और भी कई क्वेश्चन होंगे जो इसके ऊपर अपन कर सकते हैं। अब आती है बात, नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल और मैटर ऑब्लिक मटेरियल। आपको कंडक्टिविटी के बेस पे मटेरियल को क्लासिफाई करना है। तो यहाँ पे देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ मटेरियल और मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द कंडक्टर, वेरी सिंपल। सेकेंड इज कॉल्ड एज नॉन कंडक्टर. It's also called as, very important here, note that students, Non-conductor is also called as dielectric material. It's also called as dielectric material, right?
and third one is called as it's called as semiconductor, है ना, semiconductor, which is partially conductor or non-conductor, ना. It's combined property of conductor and non-conductor, semiconductor. First we discuss about conductor, in which excess of free electron, this shows conduction of electricity, easily shows the conduction of electricity. There are the lack of free electron or negligible amount of free electron, इसमें electron बिल्कुल negligible amount में होता है. It does not shows conductivity. इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन नहीं होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट क्या करेगी, फ्लो, इसका अपोजिट है ना. तो अपना आप लिख लेना, आप कोई दिक्कत नहीं, मैं शॉर्ट में ऐसे समझा रहा हूँ. इसके एग्जांपल, कंडक्टर में जनरली आपके मेटल्स ज्यादा आते हैं. मेटल्स जो है वो इजीली कंडक्टर है, इजीली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, सो दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर. वेरी हाई, जिसको अपन बोल सकते हैं कंडक्टिविटी. ओके, मेटल्स के अंदर एग्जांपल आपके जैसे कॉपर हो गया, Cu. Cu से पहले जो जिसको अपन कह सकते हैं सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, वो हो गया आपके Ag, Au, Au, है ना. तो Ag बेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं सिल्वर, कॉपर, ऑरम, है ना, गोल्ड, aluminium, these are the best conductor. Human body is also behave like as a conductor, human body. Okay, in non-conductor we can use plastic, rubber, glass. These are the plastics, rubber, glass, etc. These are all are the non-conductor or dielectric material. Again, and further we discuss about what is dielectricity and dielectric material, and semiconductor, which is in between conductor and non-conductor. It's not perfectly conductor, neither conductor nor a non-conductor, between these two. So that is called as semi property. So this is the classification of matter or material on the basis of conductivity. Now we discuss about the types of the charges. There are free charge and bound charges. There are two types of the charges, free charge and bound charge. Very simple topic. We know that all electron revolving in a particular stationary orbit with respect to the nucleus on the basis of closeness of nucleus and far, that shows the electron is bound or free. If there is a very strong attractional by nucleus, then we can say that it is completely bound or binded. If there is very loose attraction, then we can say that the charge is free. So there are two types of the charge, free and bound charge. Free and bound charge. Free and bound charge. First we draw a nucleus. This is the central massive part of the atom, and these are the orbits, stationary circular orbits around a nucleus in an atom. Okay, so this is the nucleus. This is K, L, M, N, O, N, etc. This is the innermost electron, innermost orbit. There is very strong attraction, strong attraction by nucleus. On these electrons there is very high attraction, strong attraction, strongly attracted by nucleus. These electrons are highly attracted, highly bonded. So these are called as the bound charge. These are called as the bound charge. Bound charges exist in innermost orbit, and very strongly attracted. Okay, so this is the bound charges. They does not shows the flow, so that's why they does not contribute in electricity conduction, right? Because they does not move, they are not free. While in outermost orbit, this is the electron exists in outermost orbit. This is called as what?
This is outermost orbit or valence orbit. Valence orbit. It is loose attraction or loosely bonded. Loosely bonded. Loosely bonded or weak attraction. Weak attraction by nucleus. Weak attraction by nucleus. So we can say that it is weak. So it's free electron. So it is free electron. So there are two types of charge. This is free charge and this is the bound charge. Generally, free electron easily flow inside the material, not outside of the material, inside of the material, inside of the surface of the material, easily move and shows the conductivity and shows the current. While bound charges does not move, so that does not shows the conduction. While in other cases like electrolyte, in electrolyte there are two types of the charge carrier. First is positive ion, another is the negative ion. While in general conductor there is only one shows the carries the charge, that is the free electron. Okay, is one charge, a unit charge carrier. Okay, now this is a very simple topic. Again we discuss about the dielectric material, type of dielectric material. What is dielectricity and what is the polarization? A very important topic, dielectricity and polarization. इसको रफ कर रहा हूं मैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझना अच्छे से. Next topic is dielectric material. Dielectric material, और इसको ब्रैकेट में अपन ने लिख दिया dielectricity and polarization. What is the polarization and what is dielectric material? First we discuss about what is the dielectric material. Dielectric materials means non-conductor material. Non-conductor material. A material which does not shows the conduction or electricity is called as non-conductor. मतलब dielectric never shows the conduction of electricity or conduction of current. These are called as dielectric. But when we place these material in external electric field, देखो dielectric इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर रहा है, नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है. बट इफ वी प्लेस dielectric or non-conductor material in electric field, in external electric field, then they shows the electric effect. That type of the material is called as dielectric material. A material which shows very important electric effect, which shows electric effect when we placed it in external electric field, then this type of material is called as, non-conductor है ही है, is called dielectric material. But they does not show shows conduction of electricity. फिर भी वो conduction of electricity को show नहीं करेंगे, मतलब अभी भी वो क्या रहेंगे, नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे. They behave like as non-conductor, but they shows the electric effect when we place these non-conductor material in electric field. मतलब है तो non-conductor, बट उसको फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में रखते हुए इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है. व्हाट डू यू मीन बाय हियर इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इलेक्ट्रिक इफेक्ट means their ions or charges are slightly displaced, not move, slightly displaced
slightly displaced मतलब configuration changes, slightly displaced under the effect of electric field, external electric field के अंदर उसके अंदर जो आयंस है कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है. इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस देयर आयंस, आयन में कौन कौन से, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और चार्जेस आर स्लाइटली डिस्प्लेस, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस वो पोलराइज्ड हो जाएंगे, है ना. इसी इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आगे जाके अपन क्या बोलेंगे, दिस शोज दैट, इसी को अपन आगे जाके बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन. कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी और उसको अपन क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन. अब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को भी दो पार्ट्स में आपने क्लासिफाई कर दिया है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल. डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कंडक्टिविटी को शो नहीं करते हैं, नॉन कंडक्टर होता है, बस कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे. उसके अंदर जो आयंस है वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन उनका चेंज होता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, राइट. अब देखते हैं कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, कौन कौन से टाइप में ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, है ना. क्या क्या इसके अंदर इफेक्ट आएगा, किसी में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, किसी के अंदर उसका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा. तो देखो इसको दोनों को मैं पार्ट्स ले रहा हूं और पोलराइजेशन भी इसी के अंदर आएगा. तो अभी दो पार्ट्स ले लेंगे इसके और साथ में पोलराइजेशन में जाएगा, और दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखना है. डाइइलेक्ट्रिक कभी भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेंगे, बट इनके अंदर इंड्यूस्ड हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हो जाएगा. तो यहाँ पे आपके वापस जो है वो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने डाल दिया था, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के दो पार्ट्स कर लेते हैं यहाँ पे, और दोनों पार्ट्स को पैरेलली समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपको. यहाँ पे हो जाएगा पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, या मॉलिक्यूल्स बोल दो आप इसको. यहां पे आ जाएगा सेकंड नंबर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, चाहे आप मटेरियल बोलो ऑब्लिक इसको मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो. यहाँ पे पोलर होंगे और यहाँ पे नॉन पोलर. पोलर मींस पहले से ही पोल्स है ना. तो इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में इसके अंदर क्या हो गया, in these material positive and negative ions are not coincide to each other, not coincide to each other. मतलब इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट होता है, स्लाइटली separated, slightly displaced, not coincide. Like this, minus plus. These are called as polar dielectric molecule. Example आप इसका ले सकते हो, HCl है, H2 है. These are the polar dielectric molecules. They have a electric dipole moment. They possess a electric dipole moment. मतलब their dipole moment is not equal to 0. इनका dipole moment, they exist electric dipole moment. इसके अंदर electric dipole moment है. In absence of external electric field, they are randomly placed randomly, but in presence of external electric field, they arranged such that their dipole moment p vector of every molecule align with the field. जैसे मान लो E नॉट E इज इक्वल टू 0, मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन.
तो ये आपका डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स कैसे पढ़ा है, इस टाइप से अरेंज है, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस टाइप से पोलर है। दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल ना, डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल है। बट अब आपने इसके अंदर फील्ड लगा दिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड आपने यहाँ लगा दिया। मतलब यहाँ पे आपका पूरा पॉजिटिव सेटअप है और यहाँ पे पूरा आपका प्लस 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 और यहाँ पे आपका क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है वो सब अरेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखो ये इनका डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है। अलाइन विथ फील्ड, अलाइन विथ फील्ड, और आपको यहां देख लो यह क्या है, सब रैंडमली है ना, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे सब अलाइन होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर जो होता है ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, लेकिन सिर्फ उनका कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया वो अलाइन विद द फील्ड हो गया। अब आती है बात यहाँ पे मेन आपके लिए, यहाँ पे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और इसी के अंदर आपके जो टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा आपके क्या, पोलराइजेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना। इसका उल्टा ले लो, इन दिस मटेरियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर नॉट कॉन्साइड टू ईच अदर। In these material positive and negative ions are coincide to each other, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बताओ, कॉन्साइड करते हैं, कॉन्साइड टू ईच अदर। इसमें कॉन्साइड टू ईच अदर मतलब यहाँ पे कैप्सूल स्ट्रक्चर है, यहाँ से पहले से ओवल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो है स्फेरिकल फॉर्म होगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि बोथ आर एट कॉमन सेंटर, है ना। H2 है, N2 है, O2 है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। कॉमन सेंटर है, कॉमन सेंटर ऑफ बोथ आयन जो है वो एक कॉमन सेंटर पे होते हैं। यहाँ पे देखो पहले से ही एक इधर था एक इधर था, तो यहाँ पे ओवल शेप है या स्पेरिकल शेप है, कॉमन सेंटर है। तो कॉन्साइड कर रहे हैं तो दोनों के सेंटर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कॉमन है, so there is no distance between. So here डाइपोल मोमेंट, इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट इक्वल 0, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 के इक्वल होता है, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस 0, दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, डिस्टेंस 0। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर एक ही जगह हो तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या हो गया, 0। और अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होंगे तो देयर इज ए डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव पॉजिटिव होता है, आपको पता ही है, पहले बताया था मैंने, एक माइनस क्यू लिखता है एक प्लस क्यू लिखता है, और ये यहाँ पे डिस्टेंस क्या आती है, 2 है, याद आया। तो वो बात हो गई यहाँ पे, यहाँ 0 हो गया। अब ये बात हो गई कि दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं सेंटर पे, और इन एब्सेंस क्या होगा और इन प्रेजेंस क्या होगा। इन एब्सेंस, अब देखो इन एब्सेंस ऑफ electric field, these molecules are in spherical form like this, minus plus minus plus minus plus minus plus minus plus minus plus. There is no field in original form because here E is equal to 0, absent. E is absent here, absence. But in presence of, very important बात, ये जब पोलर की बात हो गई, अब हम नॉन पोलर की बात कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं मैं, ये तो पहले से स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन पोलर की। इसी को कंटिन्यू करें। बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, very important. In presence of electric field, ions are slightly displaced. Electric field ions are slightly displaced means spherical जो फॉर्म है, spherical to क्या हो जाएगा, ये ओवल शेप में चले जाएंगे। spherical to ओवल मतलब जो spherical था वो कैप्सूल फॉर्म में चला जाएगा। कैसे देखो, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली ये था, ये
या माइनस या प्लस। अब बताओ क्या होगा, तो ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो देखो ये माइनस ये प्लस था, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, ये इस फॉर्म में चलेंगे। वापस यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर, माइनस प्लस, सेम स्ट्रक्चर माइनस प्लस, मतलब ये पोलराइज्ड हो गए, दीज आर पोलराइज्ड अपने आप में। पहले देयर इज नो डाइपोल मोमेंट, बट नाउ दिस टाइम ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डाइपोल मोमेंट हो गया, देयर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ये आपका जो हो गया, इसको बोलेंगे पोलराइज्ड, इसको बोलेंगे पोलराइज्ड, पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। नॉन पोलर था, पोल्स थे ही नहीं, प्लस माइनस सेपरेट थे ही नहीं, थोड़े से डिस्प्लेस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दीज आर कॉल्ड एज पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मींस स्फेरिकल शेप से ओवल शेप में हो गया, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन, कॉमन सेंटर पे था और देन आपने इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर में लेके ऐसा कर दिया, डिस्प्लेस्ड हो गए, तो ये पोलराइज्ड हो गए, एक डाइपोल क्रिएट हो गया। इस डाइपोल को इंडक्टिव, अंडर द इफेक्ट हुआ ना, इसको बोलेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड, उसके इफेक्ट में हुआ इंड्यूस्ड डाई इलेक्ट्रिक मोमेंट, डाई इलेक्ट्रिक मोमेंट, इंड्यूस्ड डाई इलेक्ट्रिक मोमेंट या डाइपोल मोमेंट। समझ गए, डाई इलेक्ट्रिक या डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ डाइपोल बन गया, ये पोलर हो गया, अब ये पोलराइज्ड हो गया या पोलर फॉर्म आ गई इसकी, है ना, तो इंड्यूस्ड हो गया अंडर द इफेक्ट ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये जो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसी के कारण हुआ, वरना ये होता ही नहीं। तो ये आपका जो है ये टॉपिक हो गया, इसमें हम लोगों ने देख लिया कोई नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स था H2N2O2, वो कैसे पोलर हो गया अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन। और हाउ ए इंड्यूस्ड ए इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट उसके अंदर क्रिएट हो गया, डाइलेक्ट्रिक मोमेंट उसके अंदर क्रिएट हो गया, डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल के अंदर डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, उसके अंदर P यस हो गया, प्रेजेंट हो गया, जीरो था बट दैट टाइम प्रेजेंट हो गया, और अब ये उसकी तरह शो कर रहा है, पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह शो कर रहा है, फिर भी इट डज नॉट शोज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ये डाइलेक्ट्रिक है, ऑलवेज डाइलेक्ट्रिक ही रहेगा, नॉन कंडक्टर ही रहेगा। तो ये इसका पोलराइजेशन हो गया और इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट, पोलराइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कैपेसिटर क्या होता है, व्हाट इज द कैपेसिटर, एक डिवाइस है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।